नो कि अच्छा ठीक है आपने कुछ तो किया है, कुछ क्रेडिबिलिटी है, तो शायद आपके पहले फ़ोन नहीं बट तीसरे फ़ोन को आंसर कर देंगे. आज भी है तो रेलेवेंस उनका? नहीं, क्योंकि मतलब बहुत उनका pageants पैजेंट्स हैं. का, यू सेइंग, आई डोंट नो, आई फील इट्स लॉस्ट द चार्म. क्यों? आई शुडंट बी सेइंग दिस. क्यों मतलब जो रियलिटी है you can say about. I just feel, I don't know, when we were growing up, I used to watch every episode of Miss India. Like every year I used to follow contestant select हुए, ये हुआ वो हुआ. I was enamored by it. लेकिन I feel now today it's not that Miss India is doing anything wrong or the pageants are doing anything wrong. There are so many different things and distractions कि उस टाइम खाली एक चीज़ होती थी. अब सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग हैं, आप मतलब ग्लोबली किसी भी स्टार की लाइफ देख रहे हो सकते हो, तो आपको अननोन लोगों की लाइफ क्यों देखनी है? यू नो, उस टाइम तो ऐसा नहीं होता ना कि ये स्टार बनेगी कल को, अरे मुझे देखना है मिस इंडिया कौन बन रहा है. अभी तो सब मतलब कोई काइली को फॉलो कर रहा है, कोई मतलब किसी एक्टर को फॉलो कर रहा है, कोई ग्लोबली सब क्या दुनिया में चल रहा है, you know. So I feel like there are too many distractions. But is it also because I feel कि पहले ना एक दो ही होते थे तो बहुत चार्म था. अब हर किसी ने कुछ ना कुछ अपना एक पैजेंट खोल दिया है. हर मीडिया कंपनी ने या ब्रांड ने या FMCG कंपनी ने. मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया तो एक ही है फिर भी. पर अब कितने नाम बहुत सारे हो गए ना, लाइक एज एन आउटसाइडर. फेमिना मिस इंडिया पता होता मतलब था मेरे को कुछ पता ही नहीं है. हाँ, मुझे पता है कि मिस इंडिया क्या है, मिस यूनिवर्स क्या है, राइट. उसके अलावा अब आजकल कोई मिस XYZ नेचुरल, कोई डीवा, कोई ये, कोई टीन, कोई मॉडल, हमें नहीं पता ना. वैल्यू नहीं है यार. मतलब आई फील वो भी है, देयर इज जस्ट टू मच ऑफ एवरीथिंग, सो यू लूज इंटरेस्ट. तो आज किसी को अगर एक्टर बनना है, दिस इज नॉट द राइट वे. नहीं, ऐसा नहीं है. See, like I'll tell you, it's not like every contestant of the pageant has turned into an actor. You tell me last 5, 7 years, 10 years, who has won, who has turned out into an actor. In fact, I was not in the top 3. I was 4th. I was 3rd runners up, and there's nobody else I think who's acting from my batch, right? So I feel कि ये सा कोई hard and fast rule नहीं होता है. Very important is that, of course, it is a road less traveled and a difficult path, because मैं ऐसी होती थी कि 100 बार फ़ोन कर दिया, नहीं उठाओगे ना तो मैं 100 बार फ़ोन कर देती थी कि ठीक है कोई तो उठाएगा ना. And then you'll keep messaging, so people will at least respond for your perseverance and your dedication. कि अटली यार इतना कर रही है, ठीक है, हेलो, हाँ, say what is it. एटलीस्ट कोई ऐसे ही बोलेगा. Because when you're a nobody, why will people answer, right? So I'm saying it's also destiny, it's also luck. बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. कोई एक प्लेटफॉर्म आपको ऑफकोर्स एक कॉन्फिडेंस देता है. इट शेप्स यू इनटू, लाइक व्हेन आई वेंट फॉर द पैजेंट, आई डिडंट नो एनीथिंग. मतलब मुझे ये नहीं पता था कि how to style myself. I didn't know anything. So I learned so much there. So it sort of grooms you a little. And then, of course, everything else I learned on the job. You know, I grew on the job. Grew on the set. On set, on job, finesse, styling, just how to conduct myself. Whole very special. You work with a lot of these big superstars as well, and you've learned, I'm sure, a lot from them. Yeah. One of them is Mahesh Babu. Yeah. What's special in him? What do you think? क्यों वो इतने बड़े हैं? I think he's just very hardworking, yeah. Very hardworking, very like observant, and he has this whole, you know, what I love about him is that him and Namrata are such a beautiful couple. Like they've split responsibilities. She will also be involved in a lot of things to do with his work, and how family oriented he is, and still like looking at collective growth for everyone. Like it's very nice. So you feel कि बहुत family oriented and hardworking is what makes him. Yeah. And when we were talking about PR, you took Akshay Kumar's name, right? And Akshay Kumar, phenomenally, right? वो 50 पिक्चरें करते हैं back to back, and he stood the time. He's been relevant over the years. What do you think? Why Akshay Kumar is the Akshay Kumar? Discipline. When we were working on Katputli, and I've known Akshay sir closely, because when you're working, you're spending time. I think the kind of discipline and dedication he has, and he's very basic. He's like, मैं काम करता रहूँगा, and rightly so. काम से ही काम आएगा ना. Why should I stop working and why should I get into these strategies? कुछ ना कुछ तो चलेगा.
he loves working. It's not like he's trying to do it. He loves to work. You know, he doesn't know anything else besides being on set, and he enjoys it. And discipline, like in the morning he'll wake up at 5, he'll be working out. So because I also wake up in the morning and I would also work out, so I would see him, and he will not eat after 6:30 when he's shooting. His dinner will finish largely on days by 6:30. So I feel like there's a reason why he has that level of fitness even today, that energy, that enthusiasm, because he's discipline, all of that. And what's in Amitabh Bachchan? Amitabh Bachchan sir is the epitome of discipline and worshipping your work. Like if you say work is worship, अमित जी वो इंसान है जो इस बात को मतलब प्रूव करते हैं. हम लोग जब रनवे 34 शूट कर रहे थे, एक बार सेट पे वो 1 घंटा जल्दी आ गए, ठीक है. तो अजय सर के पास, अजय सर वाज डायरेक्टिंग दैट, तो वो आके सेट पे कुर्सी लगा के बैठ गए. सर ने बोला कि आपका तो 11 बजे का कॉल टाइम था. ही सर हाँ, पर मैं सुबह डबिंग नहीं कर रहा था, मैंने सोचा यहीं आके चिल करता हूँ, क्योंकि मैं मतलब चिल नहीं करता हूँ, मतलब मैं यहाँ आके बैठता हूँ बिकॉज मैं ना ऑब्जर्व करूँगा. ही लव्स हिज वर्क सो मच. एक हमारा ना सेकेंड हाफ का ना 21 पेज का सीन था, डायलॉग विद दैट होल कोर्ट का कॉन्फ्रंटेशन. उनको फर्स्ट डे से एंड तक डायलॉग्स पता थे, बिकॉज वो एक फ्लो है कैरेक्टर का. सो आई फील वो मुझे एस्पायर करना है. मुझे ये पेड पीआर और ये सब चीजें नहीं एस्पायर करनी. मुझे वो लॉन्जिविटी एस्पायर करनी है. मुझे आज स्टार नहीं बनना है, मुझे हर जनरेशन के लिए स्टार बनना है. That's somebody on the podcast said, another co-actor who has worked with Amitabh sir, he said कि जब आप अमिताभ बच्चन के साथ काम करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 18 साल के बच्चे नया नया ना इंडस्ट्री में, तो भी आप उनकी एनर्जी बीट नहीं कर सकते. आप में वो उनका इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी आप में वो पैशन, हंगर, ड्राइव है ही नहीं जो उनमें है उस एज में. और एज छोड़ो, उनमें वो एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट कि मैं देखो अभी मतलब देखो चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट होती है. कैसे हम एक नई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और लगता है बड़ा मज़ा आएगा, उनको रोज़ ऐसा लग रहा होता है कि बड़ा मज़ा आएगा, अभी करेंगे. आई रिमेंबर एक दिन पैकअप हो गया 5 बजे 6-7 बजे जो भी, तो उन्होंने बोला कल की मार्किंग कर लें. तो अजय सर ने बोला सर आपको घर नहीं जाना होता है, मुझे तो जाने दो, मतलब कल करेंगे. यू नो, सो ही इज दैट इन्वेस्टेड इन व्हाट ही इज डूइंग. यार वही चीज़ है ना, मतलब आई एम टेलिंग यू दैट जनरेशन ऑफ एक्टर्स, एंड इट एंड्स विद द अजय सर एंड शाहरुख सर एंड आमिर सर एंड वो जो अक्षय सर, इन सब की जो लेगेसी, उसके बाद दैट इज द जनरेशन ऑफ एक्टर्स जिनको ईजी नहीं मिला है. वो लोग 10-10 फिल्में एक टाइम पे करते थे, कुछ चलती थी कुछ नहीं चलती थी, ये होता था, सोशल मीडिया नहीं था. उन्होंने बहुत मेहनत करके 30-30, 35-35 साल का करियर बनाया है. Whether you look at a Shahrukh sir story or you look at Salman sir story, वो भी बहुत ऑडिशन करते हैं, या जिनकी भी, राइट. देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड आई फील उस टाइम लोगों तक रीच होने के लिए और ज़्यादा फिल्में लगती थी, क्योंकि पेपर में आता था ना, कोई एक सिनेब्लिट्स में आ गया या कोई एक फिल्म फेयर में आ गया, या ऐसी वाली ना थिएटर्स होते थे, ना थिएटर्स ना पैसा होता था. जब आपकी फिल्म दूरदर्शन पे आएगी या जब आपकी फिल्म टीवी पे सेट मैक्स पे आएगी, तब लोगों तक एक रीच, मैं बोल रही हूँ इंटीरियर्स में जो रीच, तो उन्होंने बहुत साल मेहनत की. सो दे हैव नॉट गॉटन इट इजी, दे ऑल वैल्यू देयर वर्क. आई फील जो यंगर जनरेशन है ना, एंड मतलब इवन दो आई एम यंगर जनरेशन, मेरी जो कंडीशनिंग है वो साउथ में हो गई थी, राइट. बिकॉज वहाँ पे मैंने सीखा, एंड वहाँ भी उसी तरीके से चलता है, राइट. आप बहुत वैल्यू करते हो अपने, और वहाँ PR नहीं है, सोशल मीडिया का इतना नहीं है, इट्स द ओल्ड स्कूल वे. आई फील कि यहाँ पर हम लोग, नॉट एवरीबडी बट अ लॉट ऑफ पीपल फील कि ओवरनाइट दिस, बाइंग फॉलोअर्स, डूइंग दिस, ऑल ऑफ दैट कैन मेक यू अ स्टार. ऐसा नहीं होता है. बड़ी वेस्ट ने सिखाया है, like this usually came from. क्यों सीख रहे हो? But I'm saying क्योंकि फॉर्मूला बहुत लोगों ने वर्क किया है, इसलिए सिखाते हैं. तो मे बी चलो मान लो बहुत नहीं तो कुछ पे वर्क किया है, तो इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि इजी वे आउट मिल रहा है, कुछ कर लेते हैं. या बट इजी वे लाइफ में कभी लॉन्जिविटी नहीं लाता है. मे बी, या आई फील दैट्स माई बिलीफ. जिसके लिए भी चले बहुत अच्छी बात है, बट आई फील दैट हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस एंड डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं मिलता है. एंड ऑनेस्टी विद योर वर्क एंड विद योर सेल्फ. किससे झूठ बोल रहे हो आप?
बट पता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज वन पर्सन हु इज अ जनरेशनल सुपरस्टार, इट्स कॉल्ड शाहरुख खान, राइट? He is amazing. I don't know, I'm a big fan I'm a of Shah Rukh Khan. huge Shah Rukh fan. And look at that, the way he talks. Matlab, I just admire that sense of humor, that humility he still has, and matlab, he's amazing. There are multiple factors I feel that work for him. Of course, the films that he's had, the legacy he's created with those films. क्योंकि आप बिना अच्छे films और success के नहीं create कर सकते, right? तो he's had the cults of the cults. मतलब DDLJ आज भी cult है, हर generation के लिए cult है. अच्छी movies थी. अच्छी और cult में बहुत difference होता है. मतलब I'm saying DDLJ 90s, 2000, 2010, 2020 चारों decades में जो भी पैदा हुआ उसको DDLJ के बारे में पता है. So that's a cult film, like what a Sholay was, right? There can be good films, like, so he's had many cult films, right? And beyond that, I think his story of, you know, coming from outside, doing it on his own, then the family guy that he is, and the chivalrous man that he is. The दुनिया सब देखती है. I think I don't know another person who will walk you to the door and still open. I've heard incidents where, you know, he'll just drop you to the car, he'll still keep talking to you. He's very aware of कौन मुझे बोल रहा था कि वो जब आपसे बात करते हैं ना, तो वो चाहे आपसे 10 सेकंड के लिए बात करें, वो उस 10 सेकंड में सिर्फ आपको इतनी अटेंशन दे देंगे कि आपको लगेगा कि ये मैं दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हूँ उनके लिए. And I think that is amazing. Yeah. You know what I also love about him is this sweet little confidence he has on himself. I love it. That just is and so with good. With like a sass of humor, like a arrogance, like sweet there's arrogance. Not arrogance. There's like there's a sweet arrogance. Confidence. That's love it. No, I think that's not. See, arrogance is very misconstrued. I feel like it's more self-confidence. So but much. You're taking it negative. I'm taking it in a positive way. Like the little, जो आता है ना कि मेरे को पता है मैं कौन हूँ. मुझे पता है, it's basically मैं अपनी फेवरेट हूँ. हाँ, like मैं अपना फेवरेट हूँ. मुझे खुद पे भरोसा है. Like I have that confidence on me. मैं कर लूँगा. Yeah. हो जाएगा. Yeah. Do you have any insecurities? कभी थी पहले? यार insecurities I think बचपन में तो सबको ही होती हैं. बचपन नहीं, मतलब when you start out. But I don't think I was a very insecure person. In general, I'm not an insecure person. But कभी भी नहीं थी. मैं हमेशा से अपनी फेवरेट हूँ. मैं बता रही हूँ ना, मैं मतलब मुझे लगता था कि मैं बेस्ट हूँ. Nice. मैं बेस्ट हूँ. एंड आई थिंक माई पेरेंट्स ऑल्सो फेड दैट इन मी कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब. उन्होंने कभी ऐसा वो बोलता है ना कंपैरिजन में बोला या कुछ, कभी भी सबकॉन्शियसली भी ऐसा कुछ नहीं बोला. सो आई ऑलवेज न्यू. इनफैक्ट आई टेल यू दिस वन थिंग कि मुझे ऐसा लगता था जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई और लोगों ने बोला कि यू नो इट्स नॉट ईजी, तो मुझे लगता था क्या बोल रहे हैं, मैं मेहनत करूँगी मिल जाएगा. सो मेरे लिए ना 2+2=4 होता था. I was a very naive kid, and you know how cantonment grown up kids are, like very naive kid. So I was like मेहनत करूँगी मिलेगा, एफर्ट डालूंगी मिलेगा. सो मेरा उतना ही मैथ था. So sometimes when you don't know too much, it's good. That innocence and that naiveness and that is what you call manifestation. क्योंकि आपने in a sense manifest कर दिया है कि मुझे तो पता है मुझे मिलेगा क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ. तो मेरा उतना ही सिंपल होता था. And when you get too much information and you're just downloaded with too many things around, then you get corrupt. Yeah. So my endeavor is to not get corrupt. That's actually very good thing. You know, Irfan Khan sir said this once कि an intelligent person can have everything, but he cannot beat the innocence of a beginner. Yeah. What a beautiful line. And it's so true. Yeah. So you're just talking about that कि हाँ मैं innocent. Correct. मतलब मैं थी और अगर मैं तो जीत गई. और मैं अगर अभी भी चाहती हूँ कि मैं कई बार सोचती हूँ कि can I go back to that level of belief? It's tough. नहीं जा सकते बिकॉज उस टाइम मुझे था हाँ मैं ऑडिशन करूँगी, क्रैक करूँगी. बट अब मुझे लगता है कि अगर मुझे सेम चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे पता है. एंड आई डोंट थिंक वो इनोसेंस दोबारा कभी आ सकती है. सो आई ट्राई टू प्रोटेक्ट इट एज मच, विच इज़ वाई मुझे ना गॉसिप करना पसंद है, ना मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानना नहीं है. बट देन यू स्टिल नो, यू नो.
Yeah, so I love that line. I beautifully. It's a very beautiful line. Yeah. Well, Thank you for watching this podcast till the end. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.